Right. So, Payal, we'll start with the resume. All right. Okay. We'll be screening your resume. We'll try and understand how we can modify it, how we can make it better, and then some more suggestions you can have a look at. Okay. sir. So let me share my screen. Mm, yeah. So here, the good part is that all the suggestions which I had given you earlier, you have incorporated them. Like LinkedIn, you have added, your GitHub, you have added. So all the relevant details, they are there. Now, if I go through your projects, may try to add one more project. Okay. Okay. Any one more project that you feel like, because 3 is also good, but एक और रहे तो थोड़ा better है, right? Okay. So you can have that. And again, जैसे if you are writing bank loan project, okay, so kindly try to mention some bank, some name of the bank, okay, जैसे Citibank हो गया या any bank for that matter. Don't take any Indian names because India का data मिलना is not possible. But yeah, foreign banks, we have multiple foreign banks, and they make their data sets internet पर readily available for the purpose of survey, for the purpose of sentiment analysis, multiple reasons के लिए they make it public. So you can mention the name of the bank here. थोड़ा सा उसको research कर लीजिएगा. बाकी Spotify is fine, you have mentioned the name. And here also in hotel booking, you can name any hotel for that matter. है ना? जैसे कोई आपके रिलेटिव ही हो जो होटल्स के साथ एसोसिएटेड हो, कुछ भी, anyway, you can specify that because again they will be asking this to you in the interview. They will ask you कि होटल प्रोजेक्ट किए तो होटल का डेटा कहाँ से आया, right? That can be one very common question that they would ask you. So, like in that case, can we tell him that we have taken the data from the Kaggle website? Kaggle is something which we normally don't consider. मतलब उस पे जो डेटा है वो मालूम है अपन को भी कि वो डेटा हम लोग नॉर्मली Kaggle से ही उठाते हैं. But Kaggle का डेटा को normally in the industries they don't consider as a very decent data. They consider it good for practice. But Okay. again, for the purpose of preparing an end-to-end project, Kaggle is something which they don't consider much. ठीक है? Okay. So that is the reason. बाकी rest everything certifications you have mentioned, the projects they are good. एक और project अपने को add करना है. Then skills में okay, MySQL हाँ ठीक है, almost the order is fine, but कोशिश करिएगा Python machine learning से पहले Excel लिख दें. ठीक है, Python and machine learning बाद में रखेंगे, Excel पहले लिख लेंगे. And again, in Python you can explicitly mention the name of these libraries that we have: Matplotlib, Seaborn, है ना? Matplotlib, Seaborn, NumPy and Pandas. These 4. बाकी you have worked for Tech Mahindra. Which year have you graduated? 21. Okay. Yeah. So 1 साल के लिए you were associated with Tech Mahindra. Then for 2 years, हाँ ठीक है. All right. And data science, sorry, data analyst, intern. All right. So okay, this looks good. What was your role in this company? ये task में क्या था काम? So basically, I was assigned as a teammate handling the queries. So I have mentioned as a data collection teammate. क्योंकि जो टीममेट है, हाँ, सो टीममेट वहाँ पे क्या है कि मतलब एक सिर्फ डेजिग्नेशन दे रखा है टीममेट, तो जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो थोड़ी ज्यादा होती है, इंटरनल ऑडिट्स भी होते हैं, तो इसीलिए मैंने आगे से अच्छा इंप्रेशन के लिए डेटा कलेक्शन ऐड करती है अपने से. ठीक है, that is good. I mean, you'll be able to like explain these roles to the recruiter ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं. Yes, yes. All right, fine. Now this is okay. अच्छा, यहाँ पे because you have done certification in AWS as well, so there is a possibility they'll ask you questions from cloud. तो वो आपको अगर याद ना हो तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, because there is this open possibility here. ठीक है, बाकी डेटा एनालिटिक्स इज ओके. लिंक्डइन है. लिंक्डइन पे कितने कनेक्शन है आपके? सर लिंक्डइन पे 900 कनेक्शन है और जो फॉलोअर्स है वो 1000 समथिंग है. ऑलराइट. एंड लिंक्डइन पे मतलब आप एक्टिव भी हैं, मतलब पोस्ट करते हाँ रहते हैं? सर, मैं रेगुलर एक्टिव हूँ वहाँ पर. अभी ओके, ओके, कनेक्शंस वगैरह और इंक्रीज कर रही हूँ.
ठीक है, like you can also specify about your projects, some personal projects. आप वहाँ पर भी हाईलाइट कर सकते हैं, मतलब डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के अराउंड 5 to 7 लाइंस में आप ऐसे डिस्क्रिप्शन दे करके you can make your get this platform usable. Next is if I talk about your LinkedIn, चलो LinkedIn तो हो गया, GitHub पे कितने contributions है आपके? सर जितने प्रोजेक्ट्स लाइक आई हैव मेंशन देयर, सो द प्रोजेक्ट्स वो भी मैंने गिटहब पे ही मेंशन किए हैं, और इससे रिलेटेड एक मतलब इसके अपार्ट फ्रॉम दैट एक दो प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा हैं। ओके, एंड जो प्रोजेक्ट हम लोग क्लास में किए थे वो हाँ ऐड वो किए? भी, हाँ जी वो भी है, और पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट भी है जो मैंने बनाया है। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज फाइन। कोशिश करिएगा थोड़ा और उस पर कॉन्ट्रीब्यूशंस अपना बढ़े। इफ पॉसिबल इन द नेक्स्ट 1 month ट्राई टू टारगेट एटलीस्ट 50 contributions, so that will be helpful. I mean that will give a good image, I should say. रिक्रूटर्स को एक अच्छा इमेज मिलता है। बाकी थोड़ा सा इसका जो ओरिएंटेशन है ना, इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। जैसे ये मार्च है, ये थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, ये मार्च पीछे है, ये जनवरी पीछे है अच्छा ना, ये ठीक थोड़ा है। सा आगे है। जस्ट मेक श्योर दे आर इन लाइन, एंड बिकॉज यू विल हैव टू ऐड वन मोर प्रोजेक्ट, इट्स पॉसिबल कि आपका जो रेज्यूमे है वो एक पेज से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपन, जो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सेक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर एग्जांपल टास्कस का तो आप खाली एक ही डालें, तो नीड नॉट वरी अबाउट दैट। बट अगेन डेटा एनालिटिक्स का ये जो है, इसमें इट इज ऑक्यूपाइंग सम गुड स्पेस, अराउंड 4-5 लाइन ये आपका खा जा रहा है, राइट। तो इसको कॉपी करके चैट जीपीटी पर डाल करके यू कैन मेक इट, मतलब यू कैन से दैट क्रिएट अ समरी ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। तो उस तरह से उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अराउंड 2 lines, within 2 lines you can mention, सर एक ठीक है। सवाल पूछना था, लाइक अगर मैं ये टेक महिंद्रा का एक्सपीरियंस हटाकर वो प्रोजेक्ट ऐड कर दूं, बिकॉज ये एसोसिएट का पोस्ट था, तो ये जो एक्सपीरियंस है ये आईटी इंडस्ट्री में तो जीरो वैल्यू है, तो क्या ये वर्क करेगा? क्योंकि मेरे पास डेटा कलेक्शन और इंटर्न का ही ये दोनों जो एक्सपीरियंस है ये दोनों मैटर करता है, तो अगर मैं इसको हटा के वो प्रोजेक्ट ऐड कर दूं तो? हाँ, वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो वी हम्म कैन एटलीस्ट प्रोवाइड यू विद 1 to 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस। सो उसमें आप क्या करिएगा, अगर आपके पास लाइक कोई अच्छा खासा है मतलब रिसोर्स, देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि लाइक एक्सपीरियंस लेटर एंड इन सारी चीज़ों को लेकर के इशू होगा with respect to the designation, then what we can do is you can just specify the name of the designation, that is data analyst। कंपनी का नाम की जगह पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, है ना। एक दो पॉइंट में डेजिग्नेशन का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लिख दीजिएगा, एंड यू कैन फॉरवर्ड इट टू अस एंड वील काइंड ऑफ एडिट दैट फॉर यू, सर ठीक फिर है। वो मेरा पीएफ में इशू आ जाएगा ना, आई थिंक जब क्रॉस वेरिफिकेशन होगा तो, क्योंकि मैंने रिसेंटली ही जॉब छोड़ रखी है और पीएफ मेरा कट रहा है वहां पे। अच्छा, ओके, तो वो चीज़ भी एक बार काइंड ऑफ वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन। एंड जिस भी कंपनी को अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टास्कस को ही कर रहे हैं या कोई भी फॉर दैट मैटर कंपनी को अगर आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि उस कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करके जाए, है ना। स्टडी एज एन उसके सर्विसेज को समझ के जाएं, उसके क्लाइंट्स को समझ के जाएं, है ना, थोड़ा सा। क्योंकि दे विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एट टाइम्स दे विल इवन आस्क यू क्वेश्चंस as abrupt as why did you leave that company, and what good things do you find in our company, what bad things did you find in your previous company। तो जब वो बैड बोलता है तो एब्रप्टली आपको बैड नहीं बोलना रहता है ना, कुछ डिप्लोमेटिक आंसर अपने को देना रहता है ना, विच इज नॉट एक्चुअली बैड, ठीक है। सो इस तरह से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी रेस्ट आई फील इट्स गुड। आमिर, आपको कुछ और ऐड करना है? सर इनका रिसेंट जो एक्सपीरियंस है उसका पीएफ कट रहा है, तो इस वजह से एक्सपीरियंस तो हम अपना ऐड नहीं कर सकते फॉर एसोसिएशन। गॉट इट। वो नहीं कर पाएंगे। बाकी बाकी लाइक रिज्यूम इनका अच्छा है, रिज्यूमे अच्छा है, दैट इज भाई, मतलब मेरे को लग रहा था कि अराउंड 1-1.5 years का दे सकते फॉर्मेटिंग हैं। थोड़ी सी ठीक करनी है। हाँ, फॉर्मेटिंग वही बात है। बाकी एवरीथिंग लुक्स डिसेंट। एक और प्रोजेक्ट बस यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा गिटहब पे भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ाइए। रेस्ट एवरीथिंग लुक्स नाइस, ठीक है। अच्छा, ये भी है, साइबर सिक्योरिटी से पहले अपना ये जो है सर्टिफाइड कोर्स फ्रॉम ग्रेट लर्निंग, इसको ऊपर रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी नीचे रखेंगे।
है ना, वो Okay. थोड़ा कंपैरेटिवली कम रिलेवेंट है। Hmm. बाकी everything looks nice. So any other doubts if you have, you can ask me. नो सर, यही था, एक्सपीरियंस के लिए ही था, वो क्लियर हो गया। तो we'll be like letting you know कि कैसे उसको फॉर्मुलेट किया जाए। बाकी as I have mentioned कि the updates which is supposed to be made, बस वो करके एक बारी you can forward it to us, then within 1 month try to start applying as soon as Sir, even I'm you still see. applying, and Mhm. somewhere like sometimes I do get response, and like I have from like till now I have attended 4 interviews of data analytics, but like sometimes I got rejected by by saying that I need to work on my soft skill, and sometimes they do not respond. So still I'm applying. So like, is it possible if I get any reference? रेफरेंसेस पे भी हम लोग काम कर, है ना, within 1 week, just give us 1 week of time. Within 1 week we'll be letting you know like how exactly the shortlisted candidates they are supposed to kind of proceed. All है ना? right, all right. चलिए, बाकी thank आप you so much. अपने लिंक्डइन पे कनेक्शन बढ़ाइए उसके डेटा साइंटिस्ट के, डेटा एनालिस्ट के, और उनसे रेफरेंस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर, आई एम डूइंग दैट। ठीक है, कोल्ड मैसेजेस कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू पायल। थैंक यू सर।